Yo guys, welcome to another fucking video. So this is a very this is gonna be a long video. बहुत बड़ा होने वाला है. So मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं कहाँ था इतने दिन. It's been fucking overwhelming. I see. But things are turning good. जल्दी फिजिक लाएंगे वापस. Yes. It will take time. So मैं कहाँ था एक साल हो गया. पिछले 10-15 दिन पहले कि मुझे यहाँ आए हुए. लाइक इट्स बिन फकिंग 1 year. लाइक मैं पूरा रिपीट नहीं करते रहूँगा, बट लाइक हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा. सो what I am gonna talk about is my whole year, housing situation यहाँ पे, and jobs and people, mainly people. Like मैं आया Feb को, last year 2025 I came in Feb, and I I had no job. I was doing Uber completely, but I was still earning decent to support myself, give a little back to my brothers, my family, and in सब के बीच में like I found out like I am so grateful that I have people around me, so supporting people. Like I found some good people in campus Perth. So मैं सुबह जब आया स्टार्ट में तो मैं campus Perth में रहता था, and like सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है. Like my experience was very fucking different. Like I am bit of like I don't like that shit. I don't like campus Perth. Like nobody likes it, जो भी जाता है वहाँ से. So like because पहला इंसिडेंट बताता हूँ. Like मैं स्टूडियो में रहता था. I used to pay $600 per week, and then अचानक like suddenly out of nowhere after a week alarm goes on, bro. Like a smoking alarm, and turns out कि it's a false alarm, and ये होते रहता है. It keeps happening every fucking time, and it's not worth it. मैं जिस फ्लोर पे रहता था, I don't eat beef or pork, so I used to live on the 4th floor. It was full of a community who eat that food, and like I get it, everyone has their own choices, but like for me, like I don't like that particular smell. So मेरे लिए बहुत गंदा experience था first वहाँ से. Like it was a shit experience. Then I lived there for 2 months, and then I shifted to campus 4, which is like 4 sharing. तो मेरा rent सीधा half हो गया, क्योंकि मेरे को point नहीं समझ आ रहा था. I didn't get it. Why I'm paying so much, and for what? Just to come home and sleep after work. So it didn't make sense to me. That's why I switched. So yeah, after that I got a bike, and it was my first bike, Duke 200. And guess what? Somebody fucking keyed the bike storage, and they fucking tried to steal my bike. वो तो अच्छा हुआ, bro. Like they couldn't, and security came. Like कोई तो किसी ने तो पकड़ा. Someone came out of nowhere and pointed out, yeah, the lock is open. Yeah, and these motherfuckers, bro, they have audacity to like like email as soon as your rent is delayed by 1 day. And I got to know that my bike there was an attempt to steal my bike for 2 to 3 days. So and they didn't even fucking tell me. So like आप जब बता रहे हो कि like आपको रेंट टाइम पे नहीं आ रहा, तो यू दिस इज़ द बेसिक, एंड यू हैव मेल्स, एंड यू नो एवरीवन नोज दैट किसकी बाइक स्टोरेज के अंदर है, एंड you know it basically, right? And this fucking manager, bro, of campus has the audacity to tell me कि it's and ठीक है, उन्होंने उनके हाउस रूल्स के हिसाब से they fucking displayed it like whatever is it's you are like parking your bike on your own risk, and whatever happens to it, it's on you. ठीक है, I get it. Like I have that risk, and when I came for the first time in Australia, I didn't know that insurance is compulsory here. Like मेरे को पहले भी नहीं पता, because I never owned a bike, and it was a great feeling to own the bike for the first time.
Like I never owned a bike. Like मेरे दोस्त मुझे चढ़ाते थे when I was in school. Like I couldn't. मेरे को gear भी डालना नहीं आता था. So things were very different, and it has changed like this, like a snap. तो या ये जो सडन रुकी रही इसका रीज़न कुछ नहीं है, बस सूखा सूखा लग रहा था मुझे. So yeah, this fucking manager has audacity to tell me, bro, like if you don't feel safe, the lockers are safe, you can try parking outside. I'm like, bro, how are you helping me with this situation? I am an international student, I don't have anyone to rely on, and this motherfucker tells me that कि तू अपनी बाइक बाहर पार्क कर. अरे bro, like why the fuck I am paying so much? Like kitchens are shit, like public washrooms are shit, like, and alarms are going on, bro. People are stealing shit from kitchen, like food and utensils, bro. Like what are the standards are you setting? So I had all these, I emailed these motherfuckers, and I had a good contract for like 6 months, but I switched that, and मैंने extend करा दिया. This was my biggest fucking mistake. I still dread about making that mistake, so I had to fucking stay till last Jan, क्योंकि, and I paid 1 month का rent, like I just paid fucking 1.5 lakhs and just moved out for, yeah, I was going back to India, so I just moved out from there. और मेरे को बहुत दिक्कत हुई, और मेरे को कोई शौक नहीं था वहाँ. I didn't had any fucking reason to stay there. It's just my friends were there, and I was hitting gym, not for a while, but like yeah, my workout देख रहे हो, like पूरा मसल गिर गया है, like पूरा कर्व जो आते थे बस अभी इस साइड से दिखते हैं. like I don't care, but it's gonna be easy soon. So yeah, and nobody's there to take accountability for that, bro. Then why are you hiring security guards to just secure premises? And वो जो लोग फूक रहे हैं, वेब गांजा फूक रहे हैं बाहर एकदम, जहाँ जो चीज़ इलीगल, मैं तो like I can openly tell I don't smoke cigarettes or vape. It just doesn't goes with me. Yeah, and the thing is, are the security guards there just to evacuate the premises for that reason? Like it didn't make sense to me. Like यार, और ये मतलब मेरी बाइक चोरी होने का this attempt happened around fucking broad daylight, and this tells about how fucking irresponsible you guys are. There's no, and what is like, but what is the camera gonna do? Or you are telling me after 3 days when I am trying to like get access to my bike, मैं देख रहा हूँ like they have keyed and पूरा ठुक चुका है, और $500-600-700 घुस चुके हैं, and like what? मतलब थोड़ी like have some fucking brains or humanity. Like a student who has come from overseas and he has no one here to rely, and I don't have even fucking someone like many of them have their families here. I don't have anyone to rely on. I was so fucking alone. I'm so grateful for my dad, my mom, my brother, my friends, my girlfriend. So like I had them. If I don't, bro, I felt like fucking drowning in this water. So fucking horrendous. Damn, hates English. So yeah, then more than that, bro, चल ठीक है, I don't, मतलब मैं उनका कुछ लगता नहीं हूँ. I don't like but still you will try to make them feel home. Like तुम कैंपस पर्थ का like वो रखते हो tagline, like it feels like उनका जो कार्ड है ब्रो, उस पर लिखा है like welcome to home. Bro, what kind of home, bro, doesn't provides you security? Like what? Fucking stupid. And then उसके बाद हाइट तो और है ब्रो. Like मैं I was doing Uber for 3 months, and उसके बाद like I tried to apply in Domino's in Northbridge, bro. Fucking worst place ever, bro. The owner, I know his name but I'm not gonna take his name. This motherfucker has, भाई ये इससे डबल ढोल की इंसान देखा नहीं है ब्रो. मैं ब्रो हिंदी में
कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे माँ बाप देख रहे हैं और मेरे दोस्त देख रहे हैं, और मैं एक रॉन्ग मैसेज नहीं डालना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट ऐसे लोग हैं जो मैं बताता हूँ क्या हुआ. आई वेंट, बंदा, मैंने बहुत अच्छे से बात की, सब लाइक जॉब चाहिए, ये वो बोलता है, बट मैं तेरे को बेस पे रेट दूंगा तेरी एज के हिसाब से 24.5. हाँ ठीक है, ये सब बात की. फिर अगले बोलता है कि मैं आई विल कॉल यू, एंड बोलता है आप अभी ट्रेनिंग करोगे क्या. तो फिर मैंने बोला नहीं यार, मेरी तो यूनिवर्सिटी, आई हैव टू लीव, सो आई कैन नॉट डू द ट्रेनिंग. सो मैं चला गया, एंड ही लाइक, मैं उससे टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, ये बंदा गोस्ट कर रहा है, आड़े तेड़े मैसेज डाल रहा, मतलब मैं मैसेज करे जा रहा हूँ, एंड दिस मदरफकर हैज़ नो फकिंग, मतलब उसका पता ही नहीं है, नो क्लू वेयर, आई डोंट हैव एनी फकिंग क्लू वेयर इज दिस गाय ब्रो. एंड इट्स सो फकिंग लाइक, तू तू ब्रो इंडियन है, और लाइक अब तुम अपनी कौम के लोग से एक्सपेक्ट करोगे ना कि कोई तुम परदेश में गए हो, लाइक यू आर फकिंग विजिटिंग some other foreign country, and you find your people, and you will try to rely on them, that's your natural instinct, so you will try to help them. But this motherfucker bro, ये bro, और उसके अगले दिन bro, मेरा ही छोटा भाई है bro यहाँ पे, इसमें वो वही जगह जाता है अप्लाई करने, और वो 19 साल का है और मैं 23 का था, ठीक है. वो एज के हिसाब से, चल ठीक है, तू कॉस्ट कटिंग कर रहा है, तू तेरी कंपनी चला रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन ऑन अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट बी फकिंग एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट रहना ब्रो. तू मेरे को उम्मीद क्यों दे रहा है कि ब्रो हाँ जॉब दूंगा तेरे को, ये यू डोंट हैव टू वर्क सो मच. फकिंग मैं डुबकियाँ इसलिए रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ मेरे आंखों के सामने से ऐसा जा रहा है, एंड आई वॉज सो फीलिंग अलोन ब्रो. इफ आई डिडंट हैव पीपल ब्रो, आई वुड हैव स्वेयर फेल्ट लाइक डाइंग. आई वाज एट दैट स्टेज, क्योंकि we come from a middle class family, we don't have like अंधा पैसा नहीं है हमारे पास, like what. And I'm so grateful that my mom, dad, they supported me throughout this, my girlfriend, my brother, like they didn't know much about it, but it still felt like I had someone, and I'm very grateful for them. और मैं 1000 बार बोलूँगा. और मेरा दोस्त भी, मेरे सारे दोस्त ब्रो, they were around me and they made it little easy. मेरे को कभी भी $40-50 हो गए, $100 हो गए, आई ऑलवेज लाइक समवेयर, क्योंकि बिकॉज पे ऐसा होता था कि बहुत, that's not a stable income. Uber is not a stable income, but still some days were there like people are on holiday and they are not ordering food, so कैसे कमाएगा बंदा. बट स्टिल मैं जब ये डोमिनोज वाला गया नॉर्थ ब्रिज, दिस मदरफकर ब्रो, ही लाइक टेल्स लाइक आई वुड डू ब्रो. आप ना अगर देख रहे, कभी अगर आपको ये वीडियो दिख गया तो आई डोंट नो, बट डोंट डू दिस. खेलो मत लोगों की फीलिंग्स के साथ. मैं तो चलो ठीक है, मेरे पास लोग थे, हर किसी के पास नहीं होते. नॉट एवरीवन हैज़ लाइक good people around them, and not everyone's in that mental state to handle such kind of things, and it's very fragile. So fucking try to understand and don't give hopes to kids who are coming from overseas. That's my only point. Motherfucker. और ये ऐसा पहला इंडियन नहीं है, मेरे को ऐसे 4-5 मिले हैं. ये अपने लोग ही अगर ऐसे रहेंगे तो मतलब who the fuck we are expecting from. and actually गलती मेरी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन गाधों से कि ये थोड़ा मतलब हमें मतलब थोड़ी हेल्प करेंगे. मैं गधा हूँ ब्रो, आई एम सॉरी, इट्स नॉट इवन योर फॉल्ट दैट आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. फकिंग स्टूपिड. एंड इसके बाद ब्रो लाइक आई स्ट्रगल्ड सो मच. फिर मेरी एक फ्रेंड है ब्रो, वो एक बहुत साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, नाम नहीं लूँगा, फेमस है, सिटी के पास ही है ब्रो. ये लोग अंडर पे करते हैं सब लोगों को, और लिटरली ये करते हैं, दे एक्सप्लॉइट देम. एंड ग्रेट पीपल देयर वर्किंग, दोज हु आर वर्किंग, ग्रेट पीपल फ्रॉम इंडिया, लाइक नो हेट टू देम, बट ओनर नीड्स टू ओन अप देयर ओन शिट ब्रो. लाइक तू लाइक मेरे को सिंपल एक रीज़न के लिए ब्रो लाइक निकाल दिया था ब्रो. आई वर्क फकिंग 1 month ओवर देयर, एंड लाइक क्या कर रहा था, कुछ नहीं, डोसे चटनी उठा रहा था, इधर से उधर डाल रहा था, बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी नीड टू वर्क हियर.
as an international student, because our visa does not give us those rights. वो working rights नहीं हमारे पास कि हम एक professional job ढूंढे, and we just fucking have 48 hours, and it's very rare that someone is doing a research scholarship or internship और कुछ भी जो ऐसा एक है ना, बहुत रेयर होता है, मतलब हर किसी को ये चांस नहीं मिलता. तो समवन हैज़ टू. अब तुम पानी में, मैं अब यहाँ पे डूब रहा हूँ तो मैं थोड़े तो पैर मारूंगा ना, हाँ, तो मैं थोड़ा इधर से हिलाऊंगा कि भाई मैं डूबूँ ना. तो मैंने भी वही किया. सो लाइक आई डिडंट स्टॉप ब्रो. लाइक मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं आई डोंट गिव अप इजीली. सो या मेरे को उस रीज़न के लिए निकाला ब्रो. दिस लेडी ब्रो हैज़ एन ऑडेसिटी टू गिव मी अ फकिंग बिग ट्रे. अब मैं ठीक है, आई एम अ ह्यूज गाय. आई एम अराउंड 5'9", 5'10", एंड लाइक उस टाइम तो मैं भाई एक्चुअली मेरी अच्छी खासी बॉडी भी थी थोड़ी, बट थोड़ा पेट तो था ही. मैं लाइक बिकॉज आई डेंट टेक दैट मच सीरियसली सारी चीज़ें, एंड एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, थिंग्स आर गोइंग साउथ, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई वॉज स्टिल बिग. दैट्स द पॉइंट. लाइक मैं बड़ा होने के बावजूद भी लाइक मेरे हाथ में वो बड़ी ट्रे नहीं आ रही है, और उस मैडम ने उसमें 40-50 एकदम वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स दे दिए और बोली जाके दे. मैंने बोला, और जिस बंदी को मैंने बोला, जिस उसने बंदी के थ्रू बोला था, ठीक है, ये चीज़ कि इस बंदे को ये काम करना है, तो मैंने उस बंदी को बोला ब्रो आई विल नॉट बी एबल टू, नो बडी, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट मैं जनरली वो चीज़ लाके किसी को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो गिर जाएगा ब्रो. 40-50 ग्लासेस रखे हैं एकदम इतने बड़े. ब्रो मैं क्या प्रोफेशनल वेटर थोड़ी हूँ, गधे. माँ कसम, यहाँ मेरे माँ बाप नहीं देख रहे होते हैं, मेरे जान पहचान के नहीं देख रहे होते ना, ऐसी मतलब उनको पता था मैं कहाँ से जाता हूँ. साले 15 साल ऐसे बिताए क्रिकेट खेल के, ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ जो कहीं से भी नहीं आते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं आज की लाइफ में, एंड आई एम वेरी फकिंग प्राउड दैट आई बिल्ट दैट रेजिलियंस बिकॉज ऑफ देम. एंड एवरी वन ऑफ यू हूएवर इज़ वॉचिंग दिस, जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेला है, और थैंक यू फॉर बिल्डिंग दिस रेजिलियंस इन मी, माई टीचर्स ब्रो, हूएवर. क्योंकि मैं ये सब मैं इतना गुस्सैल, मतलब गुस्सा भाई सच्चे इंसान को आता है, और मेरा ये सब इसलिए होता था क्योंकि यही मेरी, मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन. लाइक आई कैन नॉट सी इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और मैं यहाँ वो सिंपैथी लेने नहीं आया. मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर मेरे पास शायद वो रेजिलियंस नहीं होता तो मैं ये सारे रिजेक्शंस नहीं झेल पाता. एंड ये ओनर ब्रो, और इसने, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे 2-3 लोग हैं जहाँ मेरे को बाद में पता चला कि ये इसने 2-3 लोग और को भी निकाला है ऐसे ही. Fucking bro, you guys are fucking underpaying people and exploiting them, and you guys have audacity to act like you own them. वो मेरे को ऐसे बोल रही है, like मेरे पास आती है वो ओनर, बोलती है did you say this, वो मैनेजर थी, कुछ एक्स मैनेजर होगी, जो भी है, असिस्टेंट मैनेजर जो भी होगा. सो वो आती है, बोलती है डिड यू से दैट यू कैन नॉट होल्ड दिस ट्रे, एंड मैं बोला येस आई कैन नॉट. तो बोलती इफ़ यू कैन नॉट जस्ट फकिंग लीव द जॉब, व्हाई आर वी पेइंग यू सो मच. ब्रो व्हाट अबाउट सो मच, यू फकिंग पेइंग, मेरे को नंबर्स लेने मत बोलो. लाइक ब्रो वो तो मेरी एक दोस्त है, इसलिए वो फंसेगी इस चीज़ों में, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा. बट जिस दिन मैं कुछ बन गया ब्रो, उस दिन तो मैं फाड़ूंगा ब्रो. अभी मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, ना ही टाइम है ये सब चीज़ों के लिए, बट मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ें. आई विल गेट बैक टू यू. एंड फॉरगिवनेस वो लोग डिजर्व करते हैं ब्रो जिनको पता होता है कि वो उन्होंने गलती की है, और उस औरत को ज़रा से भी आइडिया नहीं, और उसका पति चलाता है, और उसका पति तो कठपुतला है ब्रो, गधे का बच्चा, लाइक fucking clown bro. और इसके बाद ब्रो लाइक ये अगस्त की बात हो रही है, फिर सितंबर अक्टूबर 2 महीने मेरे लिए इतने टफ रहे, बट स्टिल मैं ऊबर किंग रह चुका हूँ ब्रो. मेरे को नहीं लगता मेरे जितना पैसा ऊबर में किसी ने कमाया होगा. पूरी सब जगह से पेला है ब्रो. एंड और जितनी भी ऐश की है खुद के दम पे की है, गाड़ियाँ ली हैं, जो भी, लाइक because I wanted all of this, but I made this for myself. So yeah,
उसके बाद 2 महीने बहुत टफ थे मेरे, सितंबर और अक्टूबर। तो और मैं उस टाइम पे अप्लाई कर रहा था, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया था, मैं सब जगह से रिजेक्शन। इंडीड और सीख तो मेरे को सबसे फुद्दू जगह लगती है। इट्स फकिंग यूजलेस, इररिलेवेंट टू दिस कल्चर। एंड ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मतलब जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, विल तोड़ देती है, इट फकिंग ब्रेक्स इट। सो इतने सारे रिजेक्शन देख रहा हूँ, ये सब हो रहा है। वुलीज में अप्लाई किया मैंने फिर, और मैंने सेम जॉब के लिए मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया, मैनेजर से बात की, तभी के तभी। आई एम अ फकिंग अपॉर्चुनिस्ट। लोगों को लगता है आई वॉज लकी ब्रो। जस्ट स्टॉप बीइंग एनवियस ब्रो एंड ट्राई टू फकिंग वर्क हार्ड, एंड दैट्स द की। एंड स्टॉप आस्किंग फॉर लाइक करा दो ब्रो, सबका नहीं होता है। एंड इट्स जस्ट नॉट रेफरल्स और समथिंग, इट्स जस्ट you being a right person on the right time, and not everyone is there. But if you are persistent with that, you will definitely get what is supposed to be yours. So yeah, तो करो, थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। CV थोड़ा अच्छा बनाओ। Yeah, it's like working honestly. If you are honest with your work, you will definitely get what you dream to achieve. And I got the job. Yeah. So it's little bit less harder for me, but like as soon as like money comes in the picture, your needs are spiking up. Bike पे खर्चे होते हैं, like I fucking switched 5 bikes, and like it's been a fucking wonderful journey. और ये मतलब, हाँ, मैं पॉइंट से भटक रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो, और ट्राई नॉट टू रिलाई ऑन people, try to rely on yourself and your consistency and you being persistent over getting anything. So things will get less harder in a different way. You choose your heart. अगर तुम्हें मतलब I don't like, मैंने अपने हाथ पे होप काट रखा है bro. I don't like hoping for things, I like working for them. So like choose your heart, like कि if you are relying on someone else and तुम रुके हुए हो कि भाई वो कब रेफरल देगा, when is he gonna give us a call, don't bro, just fucking work. Yeah, and things will work out for you. अब यही नहीं है ब्रो, एक मेरे फ्रेंड का चाचा है ब्रो, वो मैनेजर है ब्रो, एंड दिस मदरफकिंग गाय ब्रो, लाइक आई हैव मेट हिम 4-5 times आउट ऑफ नोवेयर. दिस गाय लाइक स्पॉन्स एवरीवेयर, एंड इसने पहली दूसरी बार मिला, लाइक हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, गुड मैन, एवरीथिंग, एंड तीसरी चौथी बार मिलके लाइक खुद ही सामने से बोल रहा है वो वेयर आर यू वर्किंग, लाइक आई हैव डन ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड आई हैव डन टूरिज्म इन माइनर, like tourism management. So yeah, I'm not a full-time hospitality guy, but I would like to work because I didn't have job at that time, and this motherfucking guy gives me an hope. वही सितंबर अक्टूबर के टाइम पे when I didn't have anything, and it was so fucking frustrating. and मैं रोज़ वेट कर रहा हूँ इस बंदे का, ये गधा मैसेज ही नहीं करता। एंड तो फिर बोलते क्यों हो तुम कि भाई हेल्प कर दोगे, ये कर दूंगा, तो क्यों? और एक्चुअली सॉरी, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। आई रिलाइड ऑन यू गाइज। मेरे को मेरी मेहनत पे भरोसा उठ गया था शायद, बट भरोसा नहीं, मैं थोड़ा अंधा हो गया था, पूरे इतना सब कुछ ओवरवेल्म हो गया था। बट मेरे को आज भी मेरी मेहनत ही आगे लेके गई है और आगे भी वही लेके जाएगी, तो मेरे को किसी का नहीं चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरे को इन लोगों के तुच्छे रेफरेंस से बचा लिया। और मैं किसी को अगर मैं मुंह दिखा सकता हूँ सबको, कि मैं बता सकता हूँ सीना ठोक के कि भाई ये जॉब मैंने खुद से हासिल की है, और ये अगली जो इंटर्नशिप मिली है वो भी खुद से ही हासिल की है, तो मैं तुम्हारे जैसा लक्कड़ बग्गा नहीं हूँ। सॉरी। नो गाली गाइस, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। सो पॉइंट ये था कि मत दो उम्मीदें, एंड मत लो सबसे बेस्ट, लाइक ट्राई टू एलिमिनेट दिस फैक्टर फ्रॉम योर ओन साइड, बिकॉज यू विल बी लेस हर्ट। या लेस फन, देख नहीं रहे हो, लाइक चिल कर रहा हूँ,
फन है थोड़ी लाइफ, थोड़ा ट्रैवल है, बट ठीक है कर लेंगे. गॉड इज़ ग्रेट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को एक घर मिला, ऐसे लोग मिले. एंड मेरे जॉब पे भी things are good. My friends who help me, huge shout out to everyone bro. I'm not a huge person to take names right now. मतलब मैं कुछ इतना बड़ा नहीं बन चुका हूँ कि मैं नाम लूँगा तो भाई आप लोग. But yeah, I still count you twice, everyone whoever has helped me throughout everything. चाहे वो पैसे के लिए हो, like मैं जनरली इमोशनली तो मैं ओपन अप नहीं करता इतना लोगों से, बट हाँ थैंक यू. और बहुत दिन से ये ड्यू था ये वीडियो. अब क्या करूँ, गुस्से में मैं रोज़ ये सोचता हूँ ये वीडियो बनाने का, ऐसे गुस्से में छोड़ दूँगा, टाइम नहीं मिलता. इट्स लाइक अब जब होना है तब वही होगा. सो या, वर्क हार्ड, डोंट रिलाई ऑन पीपल, एवरीवनस फकिंग फेक, एंड ट्राई टू बी अवे फ्रॉम फेक्स. मैं तो भाई जल्दी अपन तो कुछ बड़ा ही करने आए. करेंगे, बॉडी बनाएंगे. थोड़ा सा पेट है वो भी थोड़ा निकल रहा है. 2 किलो कम हो चुके हैं. आज की तारीख है 7 आई गेस. मैंने 2 तारीख को चैनल लिया था, 5 दिन हो चुके हैं. हमारा ऑलमोस्ट 1.7 kg कम हो चुका है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जो करेगा और जिसके प्रेडिक्शंस सही होंगे, आई विल बी गिविंग $100 गिव अवे ऑन एवरी फकिंग वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन. सो ट्राई नॉट टू मिस गेटिंग मनी, बिकॉज ठीक है मेरे लिए $100 थोड़ा सा मुश्किल है. मतलब बट ये मैं दिल से कर रहा हूँ. मेरे को मतलब लोग देखे मेरे, लाइक पहुँचे मेरे तक, एंड आई एम गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग. आई नो इट फॉर श्योर. अगर मैं कंसिस्टेंट रहा एवरीथिंग, लाइक आई विल ट्राई टू बी फकिंग कंसिस्टेंट. एंड बहुत सारे लाइक देयर आर मेनी क्रिएटर्स इन WA बट आई डोंट लाइक देम. सो बहुत मतलब NPC कंटेंट है उनका बहुत, लाइक क्या कार्स के नंबर प्लेट, ये मतलब पुलिस में एक दिन, मतलब क्या. और मैं वैसा कंटेंट भी नहीं बना सकता कि मैं अपडेट्स दे रहा हूँ कि क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है क्या नहीं. ब्रो, आई डोंट वांट सच थिंग्स. आई एम हियर टू मोटिवेट यू गाइज. आई एम हियर टू बी विथ यू, लिसन you guys, and I'm just a normal human being who's trying to be there for you. There's no other fucking secondary motive behind this. And यार जल्दी पहुंचना है. अभी तो 60-70 सब्सक्राइबर है. 100 सब्सक्राइबर्स कर दो गाइस. 100 सब्सक्राइबर्स पे $100 गिव अवे करूँगा पक्का, प्रॉमिस. ठीक है. और हाँ बस यही था. थोड़ी नाराज़गी अदा कर दी, लाइक एवरीवन्स, because this was inside me since very long, since an year now. So yeah, I love you guys. So like, share and subscribe, and I'll keep fucking working on myself very hard. And yeah, predictions कर दो. मेरा weight 31st March को कितना होगा. I'm still taking the predictions till next 3 or 4 days. Do it on YouTube comments or on my Instagram profile, Sagar X. It's just the one. And इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम. थोड़ा हमारा एक म्यूज़िक ड्रीम परस्यू करने का ट्राई करेंगे. एंड जिम तो है ही, काम सब बैलेंस करना है. इंटर्नशिप भी आ चुकी है, रिपोर्ट्स पेंडिंग है, लाइक इट्स टू मैनी थिंग्स टू डू. सो या, बट आई एम born ready for this, and I always wanted to be, like, I love doing this. I love talking to camera. I love talking to you guys. I love reaching out to people, and I'll try to bring the most authentic side of me and try to be consistent. Like, ठीक है तुम हंसो मेरे पे चलेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है मैं काम कर रहा हूँ अपने पे और मैं करते रहूँगा. आज भी देखो मैं काम. और yeah, so I'm honest. I'll do my work, keep doing this work. This is not my house, by the way. So also, it's like I'm a tenant over here. So yeah, someday हम अपने भी घर के पीछे एक ऐसे बड़ा पूल होगा जहाँ मुझे तैरना आता हो. So yeah, see you guys. बहुत बात कर ली. 30 minutes का वीडियो हो गया है. And एडिटर को ज़्यादा पैसे जाने पड़ेंगे. Shit. So yeah, love you guys. Take care. If you need help with accommodations, jobs,
डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम कि मैं तुमको सब रेडी करके दूंगा, बट आई कैन एटलीस्ट डायरेक्ट यू गाइज और थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता हूँ. यू गाइज लव यू. Like, share and subscribe. And be delusional. See you.